Hello students, yesterday we have discussed about little different examples we have used in those examples, little different in the which sense we have used the distance formula in a different way. Today also we will see little different types of examples. If you will see carefully, then you will come to know that what is the little difference, why I use that word little difference. You will come to know that here directly, or we can say they are not asking us use distance formula properly and find out the distance. If you will see, then you will come to know that what is the little changed form in the example. Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points 7 1 and 3 5. Means here we have to find out the relation. Okay, we have to find out the relation between x and y. X and y, when we are writing in the equation, that time it is one type of linear equation, remember, which is in the form ax plus by is equal to c और ax plus by plus c is equal to 0. ऐसा भी हम कह सकते हैं, ax plus by plus c is equal to 0. Okay, find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points 7 1 and 3 5. Here directly it is not told we have to find out the distance in between the points. Do you understand? Only one word is used. By using that word we can understand here we have to use the distance formula, equidistance. और इस फॉर्म में जब भी एग्जाम्पल आएगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, तो कैसे सॉल्व करना है देखो अच्छी तरह से, you will understand it. What I will do here, look and try to understand. Here first of all, this point xy is given only, and here 7 1 and 3 5 is given. Which points are there? That is not given. Then how to find out this the relationship? That is the sometime question front of us. We are sometime thinking how to find out the relationship. These points are not nominated properly. First of all, what we will do? We will nominate those all points in a proper way. Means look here. Let us consider. Okay, point P whose coordinates are xy is equidistant from points कौन से पॉइंट्स है 7 1. We will consider suppose A 7 1 and B 3 5. Okay, let us consider Pxy is equidistant from points A 7 1 and B 3 5. What is mean by this? Look here, suppose here point P and suppose here point A and B, means the distance in between AP is equal to distance in between BP. इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया? जो डिस्टेंस AP के बीच में है वही डिस्टेंस किसके बीच में है, BP के बीच में. बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. टू अंडरस्टैंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. एक तरह का डिस्टेंस ही फाइंड आउट करने का है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू राइट द दिस इज द डिस्टेंस. ओके, वी आर गोइंग टू राइट इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन. तो कैसे लिखना है देखो, हियर व्हाट आई टोल्ड, AP इज इक्वल टू BP, देन AP इज इक्वल टू BP, यानी कि पॉइंट P A से जिस डिस्टेंस पे है उसी डिस्टेंस पे B से भी है. ओके, AP इज इक्वल टू BP, देन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर बोथ x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square is equal to BP का डिस्टेंस फॉर्मूला भी सेम आएगा, x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. ओके, अभी a x1 y1 p x2 y2, p के भी कोऑर्डिनेट्स में मालूम है, a x1 y1 a x2 y2, वैल्यू पुट करो क्या आता है देखो, इन द स्क्वायर रूट. ओके, x minus 7 square plus y minus 1 square is equal to, in the square root, x minus 3 square plus y minus 5 square. ओके, y minus 5 square. अभी अच्छी तरह से देखोगे तो समझ में आएगा, इधर x y दोनों तरफ भी है. x y दोनों तरफ होने के कारण इसका हम डायरेक्टली एक्सपांशन नहीं लिख सकते. x माइनस 7 इसका सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, y माइनस 1 इसका भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता. ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग किस्म का एग्जाम्पल है. तो सब्ट्रैक्शन नहीं होता तो क्या करेंगे देखो, अभी ये जो स्क्वायर रूट साइन है ना, ये स्क्वायर रूट साइन को पहले निकाल देते हैं. स्क्वायर रूट साइन को कैसे निकाल देते हैं, इसमें एक स्टेप हमें ऐड करनी पड़ेगी. कौन सी? दोनों तरफ का स्क्वायर रूट साइन हमें अगर निकालना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. क्या करना है?
squaring both sides. Okay, we get क्या मिलेगा देखो, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर. स्क्वायर रूट साइन ओनली चला गया. ओके अभी ये मिला हमें x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर. अब ये देखो, if you see properly then you will come to know that x minus 7 square plus y minus 1 square, x minus 3 square plus y minus 5 square, those all brackets are in the form a minus b bracket square expansion. a minus b bracket square expansion. तो a minus b bracket square का expansion क्या आता है, इधर समझने के लिए मैं एक ब्रैकेट इधर लिखता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है. a minus b bracket square, तो expansion क्या आता है, a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यानी कि इधर जो पहला पॉइंट, इधर जो पहला x है, x को हम क्या कंसिडर करेंगे, a कंसिडर करेंगे, और 7 को क्या कंसिडर करेंगे, b कंसिडर करेंगे. पहले नंबर को हमने x और दूसरे नंबर को हमने b कंसिडर किया. ओके हियर पहला नंबर नहीं है तो इधर वेरिएबल है, हम नंबर भी कंसिडर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज डिपेंड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग. यू अंडरस्टैंड. a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांशन हम यूज करेंगे. अभी देखो पहले क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हियर अभी फर्स्ट ब्रैकेट के लिए हमने क्या कंसिडर किया, a की वैल्यू कौन सी है, x, और b की वैल्यू कौन सी है, 7. ओके a की वैल्यू कौन सी है, x, और b की वैल्यू 7. तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इधर a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 7 प्लस इधर क्या है, प्लस बी स्क्वायर है, और b की वैल्यू कौन सी है हमारी, 7 स्क्वायर, प्लस इधर भी वही करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. ओके इज इक्वल टू, इधर लिखता हूँ देखो, ए एक्स स्क्वायर, इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इधर ए की वैल्यू कौन सी है, एक्स, और बी की वैल्यू कौन सी है, 3, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू कौन सी है, वाई, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू कौन है, 5, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर. समझे, इधर देखो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन लिखा है इधर, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 इंटू वाई इंटू 5 यानी कि ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कौन सा, 5 का स्क्वायर. अभी सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आता है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर ही आता है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी कि 14x प्लस 7 स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 यानी कि माइनस 2y, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, इज इक्वल टू, इधर देखो अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी कि माइनस 6x, प्लस 3 स्क्वायर यानी कि क्या, 9, प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 5 माइनस 10y प्लस 25. समझे, इधर क्या क्या देखो, ये जो एक्सपांशन लिखा है, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x प्लस 3 स्क्वायर 9, प्लस साइन है तो प्लस, इधर देखो ओके, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 यानी कि माइनस 10y, प्लस 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25. ओके अभी क्या करेंगे, x जो है एक साइड को लेंगे, y जो है एक साइड को देंगे, तभी चल सकता है. नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, जिधर ग्रेटर नंबर है उस साइड को स्मॉल नंबर लेके जाओ, तभी भी चल सकता है. अब ये देखो एक्स स्क्वायर इधर है, वो इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक साइड को लेते हैं, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, वो एक साइड को लेते हैं, और एक्स जो है उधर ट्रांसफर कर देंगे. तो क्या होता है देखो, अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आएगा. ओके देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया. ओके इज इक्वल टू, अभी बचा है क्या देखो, ये माइनस 14x है, इधर जाएंगे तो प्लस 14x होंगे. ओके और ये माइनस 6x एज इट इज़ आएंगे.
इधर से हमने ए ट्रांसफ़र किया, ये इधर लिया है, -2 आए, उधर जाएंगे तो +2 आए होंगे, ओके। और इधर क्या है, -10y है, समझे। नेक्स्ट ये 49 जो है वो 49 भी इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस क्या होगा देखो, -49 होंगे। ये जो +1 है, जो -1 होगा, इधर क्या है, +9 +25, समझे। क्या किया है, x को एक साइड लिया है, y को भी एक साइड लिया है, और नंबर को भी एक साइड लिया है। ये नंबर तुम इधर भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इधर क्या होगा देखो, अभी ध्यान से देखो, x² कैंसिल हो जाएगा, y² कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 0 इज इक्वल टू, इधर देखो 14x - 6x यानी कि 8x, इधर क्या आएगा 2y - 10y, ग्रेटर नंबर कौन सा है, -10 है, तो -10 में से 2 गए, ओके, -10 में से 2, तुम सम ऑफ यू दे में कन्फ्यूज, तो क्या करेंगे, 10 में से 2 गए, बचे कितने, 8, और ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10, उसका साइन कौन सा है, माइनस, यानी कि -8y। इधर देखो माइनस माइनस, सम टाइम यू आर डूइंग प्लस, सम स्टूडेंट्स आर डूइंग प्लस, पर सेम साइन एडिशन, -1 -49 -1 -50 होता है, प्लस 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 एडिशन, तो कितना आएगा 34। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, इधर क्या है देखो 8x - 8y, ओके, -50 + 34, 50 ग्रेटर है, बड़ा नंबर है, तो 50 में से 34 गए, कितने हो गए, -50 में से 34 गए, 16 हो गए, ग्रेटर नंबर है माइनस, तो -16। अभी क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो 16 को इस साइड को भेज देंगे, तो क्या होगा देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 8x - 8y इज इक्वल टू 16, इधर आ गया तो प्लस हो गया, समझे, इधर आया, और ये मैंने एक साइड को लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 16 इज इक्वल टू 8x - 8y, तो ये घुमा के ऐसे भी लिख सकते हो। इधर 8 कॉमन है, तो 8x - y इज इक्वल टू 16, 8 से डिवाइड करो तो x - y इज इक्वल टू, 8 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा, x - y इज इक्वल टू 2। दिस इज नोन एज रिलेशन इन बिटवीन x एंड y, समझे क्या करना है। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा अलग किस्म का एग्जाम्पल है, इस टाइप के एग्जाम्पल वो एग्जाम में 100% पूछने की संभावना होती है, क्योंकि इधर डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला नहीं होता है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इधर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म में से यूज़ करते हैं। क्वेश्चन फिर से देखेंगे इधर, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7 1। हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर p x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स, ओके, पॉइंट्स कंसीडर किए पहले, a 7 1 b 3 5, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिगर भी इधर ड्रॉ किया है। ए पॉइंट p जो है वो a से भी और b से भी इक्विडिस्टेंस, यानी कि AP इज इक्वल टू BP। डिस्टेंस फार्मूला दोनों तरफ यूज़ किया, वैल्यू पुट की, बाद में क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, और इधर a - b ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन हमने यूज़ किया है, और वैसे ही सॉल्व करते आए, तो फाइनली हमें आंसर मिला x - y इज इक्वल टू 2। दिस इज नोन एज रिलेशन इन बिटवीन x एंड y। समटाइम ये थोड़ा सा अलग भी आ सकता है, ओके, समटाइम ये x इधर, अगर तुमने इधर, मैंने क्या किया, x उधर ट्रांसफर किया, अगर सारे नंबर तुमने इधर ट्रांसफर किए तो x माइनस में भी आ सकता है, मैंने सॉल्व करके रखा है, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इधर सेम है, कुछ नहीं किया है अलग, ये देखो सेम उसी तरह से सॉल्व किया है, लेकिन इधर क्या किया है देखो, x² और y² जो था मैंने एक साइड को लिया था और बाकी के एक साइड को लिया था, समझ में आ रहा है। तो इधर मैंने क्या किया है, ये देखो अच्छी तरह से, x एक तरफ को रखा है, वन साइड आई हैव केप्ट x, y आल्सो आई हैव केप्ट वन साइड, एंड नंबर्स को एक साइड लिया है, 9 + 25 - 49 - 1। बाद में क्या आता है देखो आंसर, -x + y इज इक्वल टू -2 आता है आंसर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई अब इक्वेशन बाय -1, ओके, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, x - y इज इक्वल टू 2। तो इधर x प्लस ही क्यों रखना है, जनरली तुम देखोगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax + by, तो हियर a शुड नॉट बी नेगेटिव और a शुड नॉट बी 0, रिमेंबर, फॉर दैट पर्पज वी आर राइटिंग x - y इज इक्वल टू 2। डू यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग। अच्छी तरह से देखो ये एग्जाम्पल, मैंने प्रैक्टिस के लिए इधर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, वो एग्जाम्पल देखो और प्रैक्टिस करो। इफ द पॉइंट्स 4 3 b, if the points a 4 3 b x y are on the circle with the center, find the value of
x. Find the value of x, that is px0 be the point equidistant from the a 2 minus 5 and b minus 2 9. सेम तरह का पॉइंट यूज करना है. इधर रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला, इधर क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, x फाइंड आउट करने के लिए बोला है. बाकी सारे नंबर एक साइड को ले लो, x आ जाएगा. इसी तरह की एग्जांपल्स हैं. ट्राई योर लेवल बेस्ट, 100% यू विल गेट आइडिया अबाउट इट. आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट इट. ओके, नोटबुक में लिखो, प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट्स है तो बताओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, the remaining points will continue in the next video. Thank you.